So this was the question which we have done till cost sheet in last lecture. In last lecture, we have done this sum till what beta? Cost sheet, right? Now we have to prepare what? P&L account. So for P&L account, we have to see this record, that is financial record. So with respect to that financial record, these financial records are to be presented in profit and loss account. Whatever expenditure are there, that will be debited. जो भी इनकम है वो क्रेडिट. तो इसमें जो भी एक्सपेंडिचर है जो दिख रहा है ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस, मटेरियल, वो सब आप डेबिट करोगे और जो इनकम है वो क्रेडिट करोगे. और क्रेडिट में क्या आएगा? और क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब. ठीक है, तो ये फटाफट मैंने प्रैक्टिस में दिया था, काफी लोगों ने बनाया है, बट कुछ लोगों का थोड़ा बड़ है तो उसके लिए मैं बना दे रहा हूँ. फटाफट 2 मिनट का काम है, उसके बाद हम लोग रिकंसिलेशन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन सिट विद योर पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर. So we will start it. That now we have to make a profit and loss account. So profit and loss account for the year ended 31st March 2018. Debit, credit, particulars, rupees, particular rupees. Okay. Now whatever expenditure are there, debit it. Okay. So first we'll do what? Debit side item. What? First we will do what beta? Debit side item and credit. So first in debit, what is given? Direct material, okay, that is material consumed, right बच्चा? So what is the amount of material consumed? 158, 750 है क्या? जरा चेक कर लो. Yes, sir. Okay, very good. 1,58,750. 750. गणपति बप्पा मोरया. Okay. Second, two what? Direct wages. So two wages amount is what? 127,500 है. Yes, sir. Okay. कुछ भी अमाउंट में डिफरेंस रहेगा तो बताना. वेजेस के बाद अपना क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड, that is also expenditure and amount is what? 61,250. Yes, sir. Okay, 61,250. And after factory overhead, next one is what? Admin overhead. Admin 160. Administration 1,60,000. 1,60,000. Okay, very good. After admin overheads, next amount is what? Preliminary expenses. It is given preliminary expenses in the question. Preliminary expenses written off. So preliminary expenses written off. Amount is what? 4,625. Okay, 4,625. After that, preliminary expenses. After preliminary expenses, what? Selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Now, selling and distribution overhead is how much? Amount is 2,34,625. okay, very good. 2,34,625. Correct? This is the amount. 2,34,625. Okay. Now next. To selling and distribution overheads के बाद. After that, RDD is there. Now RDD amount is how much? कितना है? 475. 475. 475. Okay, और तो कुछ है नहीं बेटा. Now credit side. In credit side, first item will be what are sales, and sales is given how much? 7,50,000. That is common. Sales is given, that is 7,50,000. Now second one what? By closing stock, right? So closing stock of finished goods. 22,500. Very good. Closing stock of finished goods is also given as per financial record, that is 22,500. It is given in the question. Now after closing stock of finished goods, next item is what?
फिर क्या था बेटा, जरा नेक्स्ट आइटम बताओ. Closing stock of work in Of progress. WIP. Okay, closing stock of work in progress. By closing stock of work in process, yeah, progress. So by closing stock of work in progress, that is what? How much? 5,500. 5,500. Now next, by dividend received. Yes, sir. By dividend, 4,400. very good, 4,400. By dividend received 4,400. And एक और amount है ना, interest received. By interest received. Interest received is how much? 5,950. 5,950. Yes. So देख लो बच्चों, ये अपना हो गया P&L अकाउंट, जिसमें जितना भी डेबिट था, जो भी एक्सपेंडिचर था वो डेबिट कर दिया आपने. एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ओवरहेड्स, डिलीवरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, आरडीडी प्रोविजन किया तो P&L के डेबिट में जाएगा. आरडीडी का प्रोविजन किया, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करोगे तो बिजनेस का फ्यूचर लॉस ही होगा ना बेटा. तो लॉस, एक्सपेंसेस सब डेबिट. और क्रेडिट में क्या क्या हो गया? सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया आपने, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो. और इनकम में और क्या दिखा है? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव. ओके, यू हैव शोन ऑल द आइटम्स. अब टैली करना है. सो बेटा टैली करते टाइम पे सबसे पहला तो आपको क्या देखना है कि कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड बड़ा था भाई? Credit. डेबिट. अच्छा, डेबिट ज्यादा है इसमें. Credit. क्रेडिट. तो कितना है क्रेडिट का टोटल कितना है? 7,88,350. 7,88,350. 7,88,350. राइट है, यही है. देखो मैंने लिखा है, ठीक है, 7,88,350. It means credit side is heavier. It means what? Profit. So profit इधर कितना आएगा? 7,88,350 minus all this. ये सब 41,125. क्या करना है? ये सब का टोटल मार लेना. टोटल मार के ये 7,88,350 में से माइनस कर दो तो 41,125 आया था. ठीक है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट अ नेट प्रॉफिट. इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट. P&L में जो आया दैट इज नेट प्रॉफिट. और यही हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, चलो. तो बेटा नाउ यू ऑल कैन सी दैट इन फाइनेंशियल बुक, अपने को क्या मिल गया बेटा? प्रॉफिट मिल गया. फाइनेंशियल बुक में भी प्रॉफिट है और आपका कॉस्टिंग बुक में भी प्रॉफिट है. ठीक है, दोनों में प्रॉफिट है. अब देखो बेटा, व्हाट आई सेड कि अगर आपने फाइनेंशियल बुक P&L अकाउंट बनाया है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? P&L, मतलब फाइनेंशियल बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, तो आ जाओ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लो. आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ reconciliation. Statement of what? Reconciliation. As on क्या है अपना? 31st March 2018. As on 31st March 2018. So this is what? Statement of reconciliation. So statement, you all know how to make it. Format, simple format. 2 columns for amount, number, particulars, rupees and rupees. Okay, so the very first one is what? Profit है. और कौन से बुक का लेना है पता है सबको? आपने you have prepared P&L account also. What do you have prepared? You have prepared P&L account also. So take starting point from P&L. P&L means financial book. P&L means what बेटा? P&L means financial book. तो financial book का starting point लेना है आपको.
और फाइनेंशियल बुक मतलब पीएनएल ये रहा। इसमें क्या आया बेटा, आपको प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब पीएनएल में से लिया, फाइनेंशियल में से लिया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में से, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, आर financial profit. So this is what our starting point, financial profit. Now what is the financial profit? You can see here 41,125, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट है, बराबर है। और सुनो सुनो, लिसन, आप इधर क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप यहां चाहो तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, नो इश्यू डल, नो इश्यू डल, बराबर है, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। बट पीएनएल बनाया है तो आप पीएनएल, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो आप पीएनएल का ले लो ना बेटा, फाइनेंशियल प्रॉफिट ही स्टार्टिंग पॉइंट लो, कोई इशू नहीं, या कॉस्टिंग भी लोगे तो फिर भी टेंशन नहीं। बट अगर किसी भी सम में अगर आपने पीएनएल बनाया है तो आप पीएनएल का ही स्टार्टिंग पॉइंट लो, दैट विल बी बेटर। नहीं बनाया, खाली कॉस्ट शीट बनाया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करो, ओके, याद रखो। तो चलो, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका कितना था, 41,125, 41,125, ओके। चले अभी, नाउ लेट्स डू इट। अब अपने को देखना है सबसे मेन काम अपना प्लस या माइनस वाला, तो फटाफट कर लेते, अभी तो सब माहिर हो गया हूं, तो आ जाओ। चलो क्वेश्चन उसके लिए शेयर करता हूं मैं, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, आ जाओ। सी नाउ, अब देखो, सब लोग के सामने आपका कॉस्ट शीट और पीएनएल का स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके बेसिस पे अपने को सब करना है, ठीक है। कॉस्ट शीट और पीएनएल का स्टेटमेंट सबके सामने होना चाहिए बेटा, आ जाओ। अब सबसे पहले द वेरी फर्स्ट ऐसे आइटम लो जो इग्नोर वाले आइटम है। इग्नोर वाले आइटम कौन से है, और याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या लिया है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये याद रखना, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो एंडिंग किससे होगा, एंडिंग होगा कॉस्टिंग से, कॉस्टिंग प्रॉफिट। और कॉस्टिंग में प्रॉफिट आएगा कि लॉस, हो तो फाइनल मालूम पड़ जाएगा। और वैसे भी आपने कॉस्ट शीट बनाया है, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट आया ना, तो वही आना चाहिए, ठीक है, याद रखो। तो एंडिंग अपना कॉस्टिंग, मतलब अदर बुक अपना क्या हो गया, अदर बुक, और अदर बुक इज व्हाट, कॉस्टिंग, और अदर बुक इज व्हाट बेटा, कॉस्टिंग, ठीक है। चलो, तो कॉस्टिंग बुक के हिसाब से अपने को देखना है कि कॉस्टिंग में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। कॉस्टिंग में प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो प्लस, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस, सिंपल फंडा। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले इग्नोर वाले आइटम देख लो। इग्नोर वाले आइटम में कौन से हैं, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान देना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, अब ध्यान से देखो, समझो जरा, ध्यान से समझना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ है, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में ये आता है क्या खर्चा, कॉस्टिंग में ये खर्चा नहीं आता, याद रखो। कॉस्टिंग में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ आता है क्या बेटा, नहीं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं बेटा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ क्या है बेटा, ये एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर आपका कॉस्टिंग में आप दिखाते ही नहीं हो, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। तो जब कम होगा नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, बराबर है, तो प्लस कर दो, सिंपल फंडा। ये सब मत देखना, इधर का साइन मत देखो, ये जो साइन किया है उसने स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग बुक लिया था इसलिए किया, तो वो मत देखो, ठीक है। चलो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिलहाल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल बुक, और अदर बुक कौन सा देखना है अपने को, कॉस्टिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम, और कौन सा है इग्नोर्ड वाला आइटम, ये रहा, डिविडेंड रिसीव्ड। अब देखो बेटा समझो, डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, आपका इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट, इनकम। आपको अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक, अदर बुक आपको देखना है कॉस्टिंग। अदर बुक कौन सा देखना है आपको, कॉस्टिंग बुक। अब बताओ बेटा, कॉस्टिंग में ये इनकम आता है क्या, नहीं, ये इनकम कॉस्टिंग का है ही नहीं, ये तो फाइनेंशियल आइटम है।
ये इनकम कॉस्टिंग में नहीं आएगा। अगर कॉस्टिंग में इनकम नहीं आएगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा क्या? नहीं। इनकम दिखाओगे नहीं तो प्रॉफिट बढ़ेगा कैसा? प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। बराबर है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, इसलिए माइनस। सिंपल। ओके चलो और कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव। ये भी वही सेम आइटम, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव दोनों इनकम है, दोनों कॉस्ट शीट में नहीं जाता, दोनों कॉस्ट शीट में नहीं जाएगा। कॉस्ट शीट में नहीं जाएगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम दिखाएगा। कम दिखाएगा मतलब प्रॉफिट कम होगा मतलब माइनस। ये तो सेम ही हो गया, सेम ट्रीटमेंट डिविडेंड और इंटरेस्ट का। और कौन सा इग्नोर्ड आइटम है? यस ये वाला आरडीडी। बेटा आरडीडी जो है आपका वो फाइनेंशियल प्रोविजन है, फाइनेंशियल के डेबिट साइड में दिखाया आपने, दैट इज फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल प्रोविजन है ना बेटा, फाइनेंस का खर्चा है। ये आरडीडी आपका कॉस्ट शीट में तो आता ही नहीं है बेटा। आरडीडी अगर कॉस्ट शीट में आएगा नहीं, अगर आरडीडी कॉस्ट शीट में आएगा नहीं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा। कम नहीं होगा मतलब ज्यादा दिखाएगा। कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा मतलब क्या? ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ मतलब, प्रॉफिट कम नहीं होगा मतलब ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। ठीक है, इसलिए कम नहीं हुआ मतलब प्रॉफिट कम नहीं हुआ मतलब ज्यादा शो करेगा। सिंपल सा फंडा है, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, इसलिए प्लस। बराबर है, क्योंकि ये आरडीडी आपका कॉस्टिंग बुक में आप दिखाते नहीं हो तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं। ये आरडीडी आपका क्या हो गया? एक खर्चा ही हो गया, एक प्रोविजन हो गया, इट्स अ लॉस। बराबर है, ये आपने लॉस एज्यूम किया कि भाई ये लॉस हो सकता है, तो ये लॉस तो कॉस्टिंग में दिखाता ही नहीं हो। तो जब लॉस दिखाओगे नहीं कॉस्टिंग में तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, दैट्स इट। तो प्लस। चलो अब इग्नोर्ड वाले आइटम हो गए सब। अब क्या करना है अपने? इग्नोर्ड का आइटम डन। नाउ अब अपने को डिफरेंस वाले आइटम देखने हैं। चलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। इधर आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस। इधर तो डायरेक्ट देख सकते हो आप। डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में खर्चा कम है बेटा, सिंपल सा फंडा। कॉस्टिंग में खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा, तो ज्यादा मतलब प्लस। सिंपल सा ट्रिक। फिर इधर आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स 61 to 50 और इधर फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्टिंग का रिकॉर्ड जरा देखो, कॉस्ट शीट जो बनाया है आपने, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया उसमें? 57,125 है क्या? कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में देखो 57,125 है ये अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स, यही है ना? 57,125। ओके Yes, sir. ओके। अब फैक्ट्री ओवरहेड में देखो ये भी खर्चा है। अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में खर्चा कम है। अरे भाई कॉस्टिंग में खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होगा। अपने को अदर बुक कॉस्टिंग ही देखना है ना। कॉस्टिंग में खर्चा कम है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये भी प्लस। सेम फंडा, राइट। एडमिन का आ जाओ, एडमिन का। एडमिन इधर 1,60,000 है और कॉस्टिंग बुक में एडमिन कितना था? कॉस्टिंग बुक में जरा कॉस्ट शीट देखो, कॉस्टिंग में एडमिन कितना अपना? 156। इधर लिख देता हूं मैं, वो है 156,250। ठीक है, चलो कंपेयर करो। लो इधर भी देखो खर्चा कम है, सेम फंडा। कॉस्टिंग में खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना, तो प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब ये भी प्लस। ओके चलो और कौन सा है? इधर तो ये सब हो गया, ये भी हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये सब तो हो गया अपना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शीट ये फाइनेंशियल बुक में है 234,625 और कॉस्ट शीट में आपका जरा देखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था? 2,40,000। ये कितना है? 2,40,000। अब जरा देखो, ध्यान देना बेटा, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में खर्चा देख रहे हो? कॉस्टिंग में खर्चा इससे कंपेयर करो, कॉस्टिंग में खर्चा अब ज्यादा है, ज्यादा। कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा बेटा, कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा होगा। कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करना है? माइनस। तो ये हो गया माइनस। बराबर है, क्या हो गया? माइनस, राइट।
और कोई आइटम? हाँ, ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और कॉस्ट शीट में कितना अमाउंट है ये तो पता ही है सबको, कॉस्ट शीट में तो चेंज ही आएगा। कितना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 19750 है क्या? 19750। ओके, चलो देखो, अब सबसे पहली बात याद रखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम। कौन सा आइटम है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इनकम का आइटम, इनकम साइड में दिखता है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, इधर देखो 22,500, इधर 19,750। बेटा कॉस्टिंग बुक में अमाउंट कम है और ये इनकम का आइटम है। कॉस्टिंग बुक में अमाउंट कम है, इसका मतलब इनकम कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया। अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग ही देखना है बेटा, अदर बुक। कॉस्टिंग में अमाउंट कम मतलब इनकम कम, इनकम कम मतलब प्रॉफिट भी कम, इनकम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम, तो ये माइनस हो जाएगा। इनकम कम मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट भी कम, तो माइनस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी में देखो सेम फंडा, सेम। देखो इधर 5,500 है, इधर 5,250 दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम, अमाउंट कम है। अदर बुक मतलब कॉस्टिंग बुक में अमाउंट कम है। बेटा कॉस्टिंग बुक में अमाउंट कम है, इसका मतलब क्रेडिट कम है, मतलब इनकम कम, इनकम कम मतलब प्रॉफिट भी कम, तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो माइनस। इनकम कम मतलब प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम मतलब माइनस। सिंपल सा फंडा, और कुछ है? बस हो गया, सब हो गया। अब देखो प्लस वाले आइटम कितने अपने? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 आइटम्स आर टू बी एडेड। और माइनस में कितने आइटम है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओ वाओ, देखो 5 आइटम्स टू बी एडेड, 5 आइटम्स टू बी डिडक्टेड। बस बस प्लस माइनस कर दो, खत्म करो जैसा नॉर्मल करते हो। चलो अभी बताओ मेरे को, किसी को किसी में डाउट है कि ये वाला मेरे को सर प्लस नहीं समझा? तो बताओ, बोलो, अनम्यूट करो और बोलो कि कौन सा नहीं समझा, तो मैं फिर से बता दूं। कोई ऐसा आइटम है जो जिसका प्लस, सर ये प्लस क्यों हुआ या ये माइनस क्यों हुआ? किसी को डाउट तो बोलो, बताता हूं मैं। कम ऑन, क्लियर है? पक्का? Yes, पक्का? sir. ओके पक्का. ठीक है। पक्का. ये सब पहले पहले भी करते आ रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी। चलो बोलो बिंदास, किसी को है, किसी कोई भी स्टेप में कोई भी, या कोई भी आइटम ऐसा जो प्लस या माइनस नहीं समझा तो बोल सकता है। अनम्यूट करो, बोलो सर ये वाला नहीं समझा। जैसे कौन सा, कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं समझा तो बोलो। क्लियर है सबको? मतलब तो आगे बढ़े। अब क्या करना है, सब तो देख लिया ना प्लस और माइनस वाला, बस अब अरेंज कर दो, खत्म, आ जाओ। ठीक है, लेट्स डू इट। तो याद रखना प्लस वाले कौन कौन से आइटम है। ये 5 आइटम्स आर टू बी एडेड है, और 5 एकदम प्रपोर्शन में है, 5 आइटम ऐड और 5 आइटम लेस। ठीक है, तो चलो लेट्स सॉल्व इट। तो ऐड में राइट है, मालूम पड़ा। ऐड में चलो पांचों आइटम कौन कौन से ऐड करने हैं अपने को। सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बराबर है। डायरेक्ट वेजेस क्या हुआ था? अंडर रिकवर्ड है ना इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलो कितना अमाउंट है दोनों का डिफरेंस? 127,500 माइनस 126,875। चलो बेटा डिफरेंस कितना आया? 625। सिर्फ कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, कैलकुलेशन में कुछ भी एरर होगा तो तुरंत बोलना अनम्यूट करके। नेक्स्ट, आफ्टर दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड व्हाट? अंडर एब्जॉर्ब।
ओवरहेड्स आया तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, या अंडर रिकवर्ड भी यूज कर सकते हो, अंडर रिकवर्ड या ओवर रिकवर्ड, ठीक है। और ओवरहेड्स है तो कॉस्ट अकाउंट ही लिखने का सेंटेंस में, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलो क्या अमाउंट रहेगा दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो 61,250 माइनस 57,125, 4,125. yes 4,125. Next, admin overhead under absorbed in cost account. Administration overheads, overhead short form में लिखा है मैंने, overheads under absorbed in cost account. Under absorbed in cost account कितना डिफरेंस, 1,60,000 माइनस व्हाट 156 टू, ये तो उल्टा कर दिया, चलो अमाउंट ये वाला बड़ा अमाउंट बराबर है 1,60 माइनस 156,250, चलो कितना आ रहा है, ओके 3750, राइट। फिर नेक्स्ट है अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, preliminary expenses written off debited only in financial account, debited only in financial account। चलो वो कितना अमाउंट है, 4625 है, एक बार चेक करना अमाउंट सब लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, RDD debited only in financial account, RDD debited only in what beta financial account. So how much amount is 475, 475। चलो सबका टोटल मार लो, ये सबका टोटल कितना आ रहा है, ओके वेरी गुड बेटा 13,600, वेल डन 13,600। अब इसका भी टोटल 41,125 प्लस 13,600, 54,725. 54,725, यही है ना, ओके चलो अब लेस आ जाओ, नेक्स्ट आइटम अपना आ जाएगा लेस का, तो फॉर्मेट वही अपना नॉर्मल 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट। नाउ लेस में भी अपने 5 आइटम्स, तो सबसे पहला लेस क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड वाला, जो इग्नोर्ड आइटम है, डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसीव्ड credited only in financial account, dividend received credited only in financial account, so how much 4,400, right। उसके बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड credited only in financial account, so that is what 5950, राइट है। हाँ जो भी सेंटेंस लिखा लिख सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिटेड ऑनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, नो वरी। नेक्स्ट, अच्छा वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन put your attendance, put your attendance fast, don't miss it।
देन आपका नेक्स्ट आइटम था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड इन, सॉरी ओवर एब्जॉर्ब था ना, ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट. ओवरहेड है तो कॉस्ट अकाउंट आना चाहिए. चलो, हाउ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो 5,300. yes, 2,40,000 minus 2,34,625. So 5,375, right? Okay. Then next, selling and distribution के बाद क्या था आपका? Closing stock. Closing stock of WIP. Closing stock of WIP या पहले फिनिश गुड्स लिखना तो फिनिश गुड्स भी लिख सकता है. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ओवर वैल्यूड. अब याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में किसके बेसिस पे लिखते हैं हम? यहां सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ओवर वैल्यूड हो तो इन फाइनेंशियल अकाउंट. देखो, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का जो सेंटेंस बनाते हो आप, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो लास्ट पे फाइनेंशियल अकाउंट दिखता है, याद रखना. तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या हुआ था? ओवर वैल्यूड. तो कितना बेटा डिफरेंस? 5,500 माइनस 5,250, 250. और लास्ट में अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, ये भी वही है, ओवर वैल्यूड इन व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंट. अमाउंट कितना है? 22,500 माइनस 19,750. तो 19,750 ये माइनस किया तो कितना है? 2,750. वेरी गुड. अच्छा, सबका टोटल बताओ कितना आ रहा है? Sir, ये सबका dividend टोटल. receipt. डिविडेंड रिसीव्ड हो गया ना इधर ऊपर पहले ही. कितना आ रहा है टोटल? ओके, आई कैन सी द आंसर 18,725. 18,725. और फाइनल आंसर जो भी आएगा, अब वो 36,000. पॉजिटिव आ रहा है ना, दैट इज व्हाट? कॉस्टिंग Yes, प्रॉफिट. sir. कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना आया? 36,000. Yes, sir. यस, हो गया, खत्म. तो पॉजिटिव आंसर आया. देखो ये दिस 54